Hello dear students, hope you may be fine. In this video we are going to take the next subtopic, an important subtopic, velocity time graph for uniformly accelerated motion. कल हमने जो वीडियोस हमने पढ़ा उनमें एक्सेलेरेशन के बारे में हमने पढ़ा, एक्सेलेरेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ा और कुछ एग्जांपल्स भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी किए. सो लेट अस टेक जो हमारा टुडे आज का जो सब टॉपिक है इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. व्हेन ए बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, व्हेन ए बॉडी इज़ हैविंग ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, so what is the velocity time graph at that time for uniformly accelerated motion? So dear students, the velocity time graph of uniformly accelerated motion, it will be a straight line, including with time axis, inclined with the time axis. This is the velocity time graph of uniformly accelerated motion. It will be a straight line, inclined to the time axis. वो जो ये velocity time graph of uniformly accelerated motion है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. दैट विल बी स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. जो टाइम एक्सिस को इंक्लाइन, एक एंगल बनाता है टाइम एक्सिस के साथ. सो लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी. ये ग्राफ है, यहाँ पर ये टाइम रिप्रेजेंट करता है. this axis is representing time and this axis is representing the velocity. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ये जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है. सो लेट अस टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी on the velocity time graph at times t1 and t2. Well, this is the point at time t1 when the acceleration is here v1, and this is time t2 when the acceleration is v2 here. So let v1 and v2 be the velocities of the body at time t1. So this is the velocity of the body at time t1 and v2 is the velocity of the body at time t2. As we know, dear students, acceleration is given by change in velocity divided by time interval. We have change in velocity is acceleration is given by a change in velocity divided by time interval. So acceleration is represented by a, small a, that is acceleration is given by change in velocity. If we will take the change in velocity here, it is v2 minus v1, and if we यहाँ से हमें टाइम इंटरवल मिलेगा, that is t2 minus t1. So it will become v2 minus v1 divided by t2 minus t1. This is change in velocity and this is change in the time. This is time interval. Change in velocity divided by time interval. This will represent acceleration. So we write acceleration as v2 minus v1 divided by t2 minus t1. But from the figure, if v2 minus v1 change in velocity, that is v2 minus v1, it is represented by this bc. In the figure it is represented on the graph by bc. ग्राफ में देखो आप, ये डायग्राम में ये bc रिप्रेजेंट करता है v2 minus v1 change in velocity is represented by bc, and interval time that is represented by ac here. If it is a1 b1, similarly on this diagram, the graph, the time interval t2 minus t1, it is represented by ac. The ac and a1 b1 are parallel. This represents t2 minus t1 time interval. Similarly ac also represents time interval t2 minus t1, because this and this are also parallel. So change in velocity is represented by bc and change in time interval is represented by ac from the figure. So from the figure, it will be a right angle triangle will be here with an angle alpha. So acceleration is given by BC by AC, perpendicular by base. जो tan अल्फ़ा अगर हम यहाँ से निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में से छोटी एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनती है, यहाँ पर हम tan अल्फ़ा निकालेंगे, वो दैट विल गिव अस द एक्सेलेरेशन. गो BC by AC, go acceleration is given by tan अल्फ़ा, that is BC by AC, that is equal to tan alpha. So यहाँ पर हम देखेंगे कैलकुलेशन में, go A is equal to tan alpha, go A is equal to slope of velocity time graph. So यहाँ पर ये जो है, it will be, ये जो
यहाँ पर ये जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन विल बी द, जो एक्सेलरेशन यहाँ पर इट विल बी द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. So acceleration represents the slope of the velocity time graph in the figure. So from the figure you will understand properly. This is the acceleration is the, यहाँ पर जो acceleration है it will be the slope of the velocity time graph. So यहाँ से result हम conclude कर सकते हैं कि thus acceleration of a body is equal to slope of velocity time graph. So जो uniform body is velocity time graph for uniformly accelerated motion, that is given by the acceleration of the body is equal to the slope of the slope. यहाँ जो slope, ये जो एंगल बनता है विद टाइम के साथ, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंगल बनाता है इस टाइम के एक्सिस के साथ, और यहाँ जो एंगल है, ये जो स्लोप यहाँ पर बनता है, इट इज़ द, यहाँ पर ये देता है एक्सेलेरेशन. दस एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो यहाँ पर हमने इसका रिजल्ट कंक्लूड किया. सो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय टाइम इंटरवल. सो अगर हम यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया, दैट इज फ्रॉम वेलोसिटी ग्राफ इज इन गिवन टाइम इंटरवल. वो गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने, कितना डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने, दैट विल बी गिवन बाय दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टू टाइम. सो यहाँ पर हमने देखना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हम वो कैलकुलेट करेंगे इन द गिवन टाइम इंटरवल t2 - t1. सो यहाँ पर स्टेप 4 में हम देखेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस covered by the body from velocity time graph, that is given by distance is equal to average velocity into time. तो average velocity, that is average velocity वो बराबर है velocity v1 plus velocity v2 divided by 2. ये average velocity होगी, और टाइम इंटरवल हमारे पास है t2 - t1. तो average velocity यहाँ पर फिगर में आप देखेंगे that is a1, that is represented by aa1. जो average velocity जो v1 है, v1 जो that is represented by AA1, that is V1, and V2 is represented by BB1 on this in the diagram. So we write here V1 के बजाय हम लिखेंगे जो डिस्टेंस जो है that is given by V1, that is AA1 plus V2, that is represented by BB1 on the graph, divided by 2 into T2 - T1, and T2 - T1 is represented by A1 B1. T2 - T1, that is represented by A1 B1 here in the figure. So by putting these values here, it will become 1/2 of 1/2 बाहर निकालेंगे, ये बनेगा AA1 plus BB1 into A1 B1. वो AA1 plus BB1 into A1 B1. वो यहाँ पर वो जो S है, जो डिस्टेंस निकलेगा कवर्ड बाय द बॉडी from velocity time graph in given time interval t2 - t1, that is given by S is equal to area of the trapezium AA1 B1B. So the distance, thus distance covered by the body is given by covered by the body in given time interval is equal to the area under velocity time graph. So that is area of the trapezium. ये area of the trapezium है AA1 B1B. सो ये जो यहाँ पर देखोगे आप, ये बनता है ट्रिपिज्म. यहाँ पर ये जो एरिया यहाँ का इसका निकलेगा इस ट्रिपिज्म का, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. सो बच्चों यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म है, यहाँ पर 1/2 ऑफ, देखो ये पैरेलल साइड्स है, हमने यहाँ लिखा 1/2 ऑफ AA1 plus BB1 इंटू A1 B1. तो AA1 plus BB1, AA1 plus side BB1, ये these are the parallel sides of the trapezium into A1 B1 को ये बनता है एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म. सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ is given in given time interval t2 - t1, that is given by the area of trapezium AA1 B1 B. ये जो एरिया जो यहाँ पर है, ये जो एरिया ये बॉडी कवर करती है. सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, thus the distance covered by a body
in given time interval is equal to area covered under velocity time graph. So यहाँ से हम बच्चों कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, जो डिस्टेंस बॉडी कवर करती है इन गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो ये एरिया जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर आता है, ये ट्रिपिज्म का एरिया जो है यही डिस्टेंस कवर बॉडी कवर करती है। सो लेट अस टेक, यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ ग्राफ्स दिखाए गए हैं। यहाँ देखो फिगर नंबर 1 में देखो आप, यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है। ये पैरेलल जो लाइन है टू द टाइम एक्सिस, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट रहती है। इसी तरह हम दूसरी फिगर यहाँ पर अगर ये ग्राफ हम देखेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करती है वेलोसिटी टाइम के दरमियान। ये ग्राफ यहाँ पर है, ये शो करता है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होती है बॉडी की। सिमिलरली ये इस फिगर में अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये जो बॉडी जो यहाँ पर नीचे आती है, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है बॉडी की। सो लेट अस टेक एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम ले लेंगे। A body starting from rest accelerates uniformly along a straight line at the rate of 10 meters per second square for 5 seconds. It moves for 2 seconds with uniform velocity of 50 meters per second. Then it retards uniformly. So बच्चों, ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये जो है, a body starting from rest accelerates uniformly along a straight line. एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सेलरेट हो जाती है यूनिफॉर्मली अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड के लिए। फिर ये मूव करती है फॉर 2 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर 2 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर सेकंड चलती है। देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, उसके बाद ये रिटार्ड हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकंड। और बॉडी जो है 3 सेकंड के बाद रेस्ट में आ जाती है। ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल बाय द बॉडी। हमने क्या करना है, हमने निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है बॉडी का, और हमने बताना है कि टोटल डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल कितना किया है। सो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। इस फिगर को आप ठीक तरह से देखो। ये यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि एक बॉडी जो है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है मीटर्स पर सेकंड में यहाँ पर, और ये जो है ये टाइम सेकंड्स में रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर देखो आप बच्चों, आप अंडरस्टैंड करोगे, एक बॉडी स्टार्ट करती है फ्रॉम द रेस्ट और एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेट होती है, यहाँ से रेस्ट से शुरू करती है और एक्सेलरेट होती है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वो इसका जो एक्सेलेशन का जो है वो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इसका यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सेकेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। वो 5 सेकेंड के लिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलेशन में मूव करते एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड्स, फिर 2 सेकेंड वो मूव करती है। वो 5 से 7 सेकेंड पर पहुँचती है। वो 5 सेकंड के बाद ये 2 सेकंड और मूव करते हैं, दैट इज़ 5 + 2 मीन्स 7 सेकंड। फिर ये मूव करती है विद ए यूनिफॉर्म एक्सेल वेलोसिटी। यहाँ पर इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है बॉडी की वो ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। वो यहाँ पर इसका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है 50 मीटर पर सेकंड। वो ए बी, यहाँ पर ए बी रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो फॉर फर्दर 2 सेकंड्स जो बॉडी है इट मूव्स फर्दर, फॉर 2 सेकंड के लिए बॉडी फर्दर मूव करती है। पहले 5 सेकंड के लिए मूव करती थी विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तो बॉडी यहाँ पर आ गई। तो फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ पर इसका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चलती थी बॉडी, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बॉडी की थी। फिर बॉडी 5 सेकंड के बाद 2 सेकंड और चलती है, वो मूव 2 सेकंड और मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है। यहाँ पर ये ए बी जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी करती है फॉर फर्दर 2 सेकंड्स। वो 1 सेकंड एंड 2 सेकंड दैट इज 7 सेकंड। वो 7 सेकंड पर
वो 5 से 7 सेकंड जो 2 सेकंड रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर बॉडी मूव करती है फॉर 2 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। वो 50 मीटर पर सेकेंड यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहाँ बॉडी मूव करती है। देन इट इज़ रिटार्डेड, देन इसका रिटार्ड हो जाता है यूनिफॉर्मली, बॉडी रिटार्ड हो जाती है यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। फिर जो नेक्स्ट 3 सेकेंड है वो 7 को 3 सेकेंड ऐड करो, 7 सेकेंड को 3 सेकेंड ऐड करो, हो गए 8, 9 एंड 10। वो 3 सेकेंड के बाद बॉडी जो है रिटार्ड होती है, इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होती है और 3 सेकेंड के बाद ये रेस्ट में आ जाती है, पहुंच जाती है बॉडी सी पर, पॉइंट सी पर। ड्रा वेलोसिटी डायग्राम ऑफ द बॉडी, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है एंड फाइनल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। सो बच्चों ये फेज़ 1 बनता है इस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये फेज़ सेकंड बनता है, ये फेज़ थर्ड बनता है। यहाँ पर पहले 5 सेकंड के लिए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव करती है ऑन स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बॉडी का। उसके बाद अगले 2 सेकंड के लिए वो ये सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अगले 2 सेकंड के लिए बॉडी मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 3 सेकंड के बाद बॉडी रिटार्ड होती है, स्टार्टिंग एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकंड्स। तो ये है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने डाला बॉडी का, जिसमें फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ एंड थर्ड हाफ ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहले है 5 सेकंड, उसके बाद और 2 सेकंड, उसके बाद और 3 सेकंड। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी बॉडी रिप्रेजेंट करती है, मूव करती है, फिर रिटार्ड होती है बॉडी, कम्स टू रेस्ट। सो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3 कवर्ड बाय द बॉडी इन द ग्राफ। दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, 1 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये बनेगा 1 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस है 5 सेकंड और अल्टीट्यूड यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? AS। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बॉडी मूव करते हैं, दैट इज़ 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो बनेगा 1 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल बनेगा 1 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, वो बनेगा 1 ऑफ 5 इंटू 50 प्लस एरिया सेकंड एरिया क्या है? ये है पैरेललोग्राम, ये बनेगा 2 सेकंड। ये है यहाँ पर, ये है 2 सेकंड इंटू 50, ये 2 इंटू 50 लेंथ इंटू ब्रेड 2 इंटू 50, ये बनेगा 2 है 2 सेकंड। यहाँ पर बॉडी फर्दर मूव करती है, ये इसका ये है 2 सेकंड और यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करती है, दैट इज़ अगेन गिवन बाय 50 मीटर पर सेकंड। वो बनेगा 2 इंटू 50 सेकंड एरिया थर्ड किसके बने? दोबारा ट्रायंगल बनेगी, बेस इंटू 1 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। वो यहाँ पर ये साइड है 3 सेकंड, ये साइड 3 सेकंड के बराबर है। यहाँ 7 to 10 दिट इज़ ये 3 सेकंड डिपेंड करता है, इंटू ये वाला साइड वो 1 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस यहाँ पर बनता है 1 ऑफ 3 सेकंड है यहाँ पर, और अल्टीट्यूड है 50। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वो 50। सो हमारे पास बनता है, ये बनेगा 125, 2 इंटू 25 बनेगा 50, कसर यहाँ पर कसर कटेगी तो ये बनेगा 50 इंटू 5 बनेगा 125। ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ पर बनेगा 50 प्लस ये 50 2 100 बनेगा यहाँ पर, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 50, 2 1 2 2 25 50, 25 इंटू 3 बनेगा 75। सो यहाँ से मिलेगा हमें 125, यहाँ से हो गया 50 2 100 और ये यहाँ से मिलेगा 75। सो डिस्टेंस ट्रैवल बनेगा 300 मीटर। ये हमने निकालना था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू रिपीट द वीडियो 1 or 2 times, you will be able to understand in a better way. Thank you very much.